Hello, friends. Welcome to the Siddharth classes. How are you all? I hope you all are doing well. So, today we are going to start a new topic from the political science from 10th. So, the chapter number 6, the political parties. So, first we understand why do we need political parties? We need political parties because the most visible institutions in the democracy. डेमोक्रेसी में ये मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है. विजिबल इंस्टीट्यूशन मीन्स कि लोग इसको ज़्यादा पहचानते हैं इंस्टेड ऑफ द डेमोक्रेसी. इफ किसी सिंपल आदमी से ऑर्डिनरी पीपल्स जो बहुत डीप गांव में रहता है, ही इज़ इलिटरेट, जस्ट गो एंड आस्क हिम अबाउट द डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, हाउ डज इट वर्क. So he may or may not be aware about the democracy, but certainly he must know about the political parties. So most visible institution means लोग इसके बारे में कंपेरेटिवली ज़्यादा जानते हैं अदर थिंग्स लाइक डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशंस इनके. सो फॉर ordinary citizens democracy is equal to the political parties. So we can say for the ordinary person democracy is equal to political parties. So next, the visibility doesn't means the popularity. Visible, we said the political parties are the most visible institutions. It doesn't means the all loves the political parties. No, it doesn't means. So it means sometimes people criticize the political parties also for their work or what they do sometimes. So if we talk about the political parties 100 years ago, there was hardly any political parties in the world. But now at present, the political parties are omnipresent, means you will find everywhere in every country the political parties. So first we understand what is the political party, the meaning of the political parties. So a simple definition, sometime the examiner asks in 1 marks what is political parties. So a political parties is a group of peoples who come together to contest elections and hold power in the government. ये ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ग्रुप बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, और सरकार बनाते हैं. ये पॉलिटिकल पार्टीज है. दे प्रमोट द कलेक्टिव गुड्स. कलेक्टिव गुड्स मतलब वो सबके हित की बात करते हैं. दे टॉक अबाउट द वेलफेयर फॉर ऑल. सो बट व्हाट डज कलेक्टिव गुड मीन्स, मतलब एक चीज़ किसी एक के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरी के लिए बुरी भी हो सकती है. मतलब इफ़ ए पार्टी टेक ए डिसीजंस about XYZ, suppose we are going to open a industry here. So कुछ लोगों के लिए अच्छी होगी because they will find some employment, but कुछ लोगों के लिए बुरी भी होगी just because of industry. The environment would be the polluted, the environment would be polluted. So एक चीज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. तो गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाएगी? जैसे इंडस्ट्री लानी है तो कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बुरा होगा. सो दिस इज द सिनेरियो. द पॉलिटिकल रिफ्लेक्ट्स वन. So the political reflects the fundamental political divisions in the society. Sometimes political party divides the people also. Let's understand, for an example, there are two parties, party A and party B. Party A has certain ideology, party B has some ideology. So few people think the party A is good and few people thinks party B is good, and this different ideology creates the difference in the mind of peoples. So this way sometimes the political party divides the people and the society. The parties are about a part of society and thus involves partisanship. So you just understand, sometimes if the examiner asks partisanship,
It is not participants. It's a different word. Partisanship means the political party divides the society. Sometimes the political party divides the society just by their ideology. So a political party has three components. First, leaders. Second, active members. Third, followers. I hope it's clear to you. Leader means who leads the party, who forms the party. And the active members, they work for the party. They spread the party. They they help the party to expand all over the nations or the state, or the followers who love the ideology of the party, and and they give the vote in favor of particular party. They are the follower of that party. So I think you have understood that कि what do you mean by the political parties, what is the political parties, क्या होती है. कलेक्टिव गुड्स के लिए काम करती हैं, बट कलेक्टिव गुड्स को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके हित की बात एक पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कर सकती है. ठीक है. सो ये सब देखा हमने. कई बार पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड भी करते हैं सोसाइटी को. सो द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, समटाइम्स द एग्जामिनर ask these questions in 3 or 5 marks. So understand, this is the most important questions in this chapter, that what are the functions of the political parties. So the examiner will ask in the 5 marks, and you will have to write the 5 functions only, but here we'll study the 7, so you can write any 5. So the first, political party contest elections. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं. इन मोस्ट, तो डायरेक्टली द पॉलिटिकल पार्टी डजेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. दे नॉमिनेट देयर और दे चूज देयर कैंडिडेट. सो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर fought mainly among the candidates put up by the political parties. Candidate fight करते हैं, but they were put up by the political parties. But there is a system who decide that who would elect the elections. But in developed countries, the supporters and the party members will decide the candidate. Like in some countries such as the USA, the members and supporters of the party choose its candidate. ऐसा होता है. They choose who is going to be participate in the elections from their side. But in India, top party leaders choose the candidate for contesting elections. इंडिया में ऐसा होता है कि टॉप लीडर्स बता देते हैं कि this person is going to be fight elections from there. So ये सब जो टॉप लीडर हैं वो डिसाइड करते हैं. Second, functions of the political parties. Party put forward different policies and the programs, and the voters choose from them. मतलब पार्टीज, सब पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो में बताती हैं कि these are our policies and the programs. If we win the election, we will execute these policies. So each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society. और उन सब व्यूज में, उन सब पॉलिसीज में हमारे लिए कौन सी अच्छी है ना. So we decide. So everybody has its own opinion for the development or for the betterment of society. So it is really difficult for any government to conclude all the views. So what they do, basically what they do, they collect the similar opinion in a group. जैसे भाई इतनी बड़ी वेरिड कंट्री के अंदर सभी लोगों के ओपिनियन पे वर्क करना
और उन पे होमवर्क करना, इट इज़ रियली ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो क्या करते हैं, जो सिमिलर काइंड के, जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने हैं इससे रिलेटेड, इस तरीके का एक ग्रुप बना लेते हैं। सो एजुकेशन को लेके, बुक्स को लेके, है ना, और ह्यूमन रिसोर्स को लेके एक ग्रुप बना लिया। तो वो जो सिमिलर काइंड ऑफ व्यूज़ दे collect in a group and try to resolve these issues. So in democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a directions in which policies can be formulated by the government, so that the policies can easily form some policies on them. जब similar kind के group हो गया, तो the government can easily understand their issues and can make policies on them. So second point, I think we have understood, the parties put forward different policies and programs. Third, play a decisive role in making laws for a country. The parties play a decisive roles in making laws for a country. मतलब पार्टी एक अच्छा रोल प्ले करती है लॉ बनाने के लिए. बट आई थिंक वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, certainly, but how does legislatures become? By the members. And who appoint these candidates? Party. So finally laws are debated and passed in the legislatures. Legislature में एक प्रोसेस है, पहले हम सारी हमारी डिमांड्स को लिख लेते हैं, इट्स ए एक्ट, है ना, एक्ट बनता है, एंड इसके ऊपर डिबेट होती है, एंड व्हेन द प्रेसिडेंट साइन इट्स बिकेम ए लॉ. तो इस तरीके से लॉ बनता है. बट इन दिस प्रोसेस द पार्टी मेंबर्स और द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेटेड. सो ये भी पार्टी ही इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है. बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग्स टू द पार्टी, और जो भी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी के मेंबर्स होते हैं. द फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स. पार्टी हैं, when they win the elections they form the government, they run the government, and the running, so the elected, the majority, or the government of majority choose their main leaders, train them, and they run the government. और उनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, है ना, काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको इलेक्ट करते हैं और फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उसी के वो ही और कंट्री को रन करते हैं. 5, those parties that lose in the elections play the role of oppositions to the party in the power. Suppose the two parties are contesting elections, A and B. Suppose party B had lost the elections, so it will play the role of oppositions. डेमोक्रेसी में अपोजिशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज they put the checkpoints on the policies and the programs of the government. Sometimes the government do the wrong activities, so they ask the questions, they criticize the work of the government. If the government fails to fulfill their promises, so the oppositions remind them, criticize them. So oppositions का एक बहुत ही important role होता है in democracy. 6, the parties shape public opinion, they raise, highlight issues. The party have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties. मतलब क्या है? Let me explain. देखो, अगर जैसे गवर्नमेंट कोई लॉ पास करवाना चाहती है एंड गवर्नमेंट लोगों को अवेयर करना चाहती है, तो इट हैज़ सम वेज टू स्प्रेड द थिंग्स. कैसे? वो अपने पार्टी लीडर के थ्रू, जो उनके पार्टी का लीडर ऑल ओवर इंडिया में है मान लो, और ऑल ओवर द कंट्री होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो पार्टी लीडर्स में वो बात जाती है,
दे स्टार्ट डिस्कशिंग अबाउट द पीपल्स, तो धीरे धीरे लोगों के माइंड में वो बात जानी शुरू करती है और लोगों वो एक ओपिनियन ले लेते हैं। सपोज जैसे कि अभी सेंसस होने वाली है, जनगणना होने वाली है, तो उसमें हमें कुछ ऐड करना है। मान लो हमें उसमें एक कॉलम ऐड करना है कि किसी से रिलेटेड भी, जैसे हेल्थ से रिलेटेड है कि हर गांव में एक जिम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी XYZ एक इशू क्रिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्टिव मेंबर्स को वो बताती है, वो लोगों से पूछना शुरू करते हैं और इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन एक शेप लेना शुरू कर देता है। और समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब एक छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं, बट दे आर नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, दे वर क्रिएटेड बाय देमसेल्फ, वो उनके खुद के द्वारा ही बनाए होते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी एक महिला एसोसिएशन ले लेते हैं, अगर महिला से रिलेटेड कोई रिफॉर्म करना है तो वो उन तक वो बात पहुंचा देते हैं, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम, स्प्रेडिंग अबाउट देम, एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द वीमेंस दैट वी आर ट्राइंग टू मेक दिस चेंज। तो इस तरीके से वो उसको स्प्रेड करते हैं थ्रू द प्रेशर ग्रुप्स, थ्रू द पार्टी मेंबर्स। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन। धीरे धीरे उनको मतलब पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सेवंथ पार्टी provides the people access to the government machinery and welfare scheme implemented by the governments. So our political system is to decentralize the power. Suppose we are not able to meet directly our prime minister, it is really difficult task, but we can directly meet to our local MLA MPs, just because, and he will put forward our demands, our policies, कुछ भी जो हमें आगे पहुंचाना है वो आगे पहुंचा देगा। और कोई स्कीम आती है, कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड we want to avail these schemes, we want to take advantage of these schemes, so we directly go to our MLA and we can talk to him that we need this I'm eligible for these schemes and I want this. So इस तरीके से हम उस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं टू मीट विद द आवर लोकल लीडर्स। सो इसमें क्या होता है, हमारा एक्सेस गवर्नमेंट तक बढ़ता है ना। नाउ द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वी हैव स्टडीड, ये भी एक नेसेसिटी ही है। जो हमने 7 फंक्शंस पढ़े, आई थिंक उनसे हमें आइडिया लग गया होगा कि वाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वाई मतलब क्यों ज़रूरी क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी तो समझ लिया कि नो what is the work of, what are the works of the political parties, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without the political parties। मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर क्यों नहीं रह सकती। सपोज ना इलेक्शन ही तो मेन मोटो है ना, वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको कहते हैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ना। मतलब आई डोंट वांट टू ज्वाइन एनी पार्टीज बट आई वांट टू कंटेस्ट एनी इलेक्शंस, आई कैन इन इंडिया, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। सपोज हर जगह से हर इंडिविजुअल निर्दलीय ही पार्टी में बिना पार्टी को ज्वाइन किए ही इलेक्शन कंटेस्ट करता है, फाइट करता है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। हाँ, आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी पड़ी, आप इंडिविजुअल डिसीजन इजीली ले सकते हो, बट इट इज़ गुड फॉर देयर और इट इज़ गुड फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं जीत जाता हूँ, तो डेफिनेटली नो डाउट आई कैन वर्क फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं इजीली इसके लिए काम कर लूँगा। लेकिन व्हाट अबाउट द नेशनल इश्यूज़, जैसे कोई नेशनल इशू में कोई पास करवाना है पार्लियामेंट से, तो कभी बहुमत बन ही नहीं पाएगा, मेजोरिटी बन ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी अलग है, वो अपनी अलग ओपिनियंस देगा, एडवाइस अलग होगी। तो नेशनल इशू पे इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। इंडिविजुअली आप लड़ते हैं, आप जीत गए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, आप अपने एरिया के लिए काम कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द कंट्रीज, जैसे कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो अब पार्लियामेंट में क्या है, अगर मान लो 543 बैठे हुए हैं, अगर उनमें से हमें 50% वोटिंग चाहिए, तो
तो क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? एवरीबडी हैज़ इट्स ओन ओपिनियन। लेकिन पार्टी में ये हो जाता है, क्योंकि अगर पार्टी उस चीज़ को फेवर कर रही है तो पार्टी के सभी जो लीडर्स हैं दे विल फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी। तो इस तरीके से पार्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। वही बात सेम यहाँ लिखी हुई है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन द परफेक्ट। तो क्या नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हमारे इंडिया में होते हैं? हाँ, होते हैं ना। द ग्राम पंचायत, द इलेक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत ना, held without the political parties. Individually, the participants or the candidate take part in the elections. But वो हमें लगता है directly, it doesn't seems that he belongs or she belongs to any political parties. But indirectly they belongs. कैसे? जैसे कई बार क्या होते हैं, वो एक ग्रुप बन जाता है। जैसे वो नॉर्थ की तरफ से भाई कौन खड़ा हो रहा है, भाई पर्सन एक्स खड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे नॉर्थ के लोग उससे जुड़ जाएंगे। साउथ ऑफ द विलेज, तो साउथ के लोग उससे जुड़ जाएंगे। या कोई कास्ट से रिलेटेड है, वो पर्सन खड़ा हो गया तो उस कास्ट के लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो वो एक इट्स टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। तो ऐसा होता है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो सबसे ज़्यादा क्यों हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? देखो, एक क्लास में टीचर आता है और वो पूछता है किसको मॉनिटर बनाना है। तो 3 बच्चे बोलते हैं कि हमें ABC। 3 बच्चे वांट टू बिकम मॉनिटर। तो हम ए को कौन बनाना चाहता है? हमने ना रेज योर हैंड्स एंड वी काउंट देम। तो इसके 20 वोट्स आते हैं, बी के 25 आते हैं, सी के 30 आ जाते हैं, तो सी मॉनिटर होगा। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन अब इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड वास्ट जोग्राफिकल एरियाज, सो एंड वी हैव लार्ज पॉपुलेशंस। तो उसमें कुछ डीमेरिट्स आते हैं। वी कैनॉट गैदर द whole populations at a one place. And the second problem is sometimes people are not so much literal about that particular issue. उनको नॉलेज भी नहीं होती उस टॉपिक के बारे में, तो फिर वो उस पर वोटिंग कैसे करेंगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं। यू जस्ट गो देयर एंड रिप्रेजेंट अस। आप जो भी बोलोगे वो हमारी वॉइस होगी। तो इस तरीके के को वो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दे नीड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। पहले डायरेक्ट था, उसके बाद में व्हाई डू वी नीड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? तो वो हमें इसलिए जरूरत पड़ी सो दैट वी कैन फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव? अब क्वेश्चन ये आता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए कंट्री में। तो इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टीज। एनीवन कैन फॉर्म ए पार्टी। कितनी भी पार्टी हम बना सकते हैं एक कंट्री में, ठीक है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। किसी कंट्री में केवल एक ही पार्टी होती है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और रन करती है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द वन पार्टी सिस्टम। इन चाइना द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। सो वन पार्टी सिस्टम कहाँ है? चाइना में। बट इन डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी टू कंप्लीट इन इलेक्शंस। इन डेमोक्रेसी एटलीस्ट 2 पार्टी तो होनी चाहिए। अब let's talk about the two-party system. So in some countries, power usually changes between the 2 parties. Several other parties may existed. मतलब दूसरी पार्टी ऐसा, it doesn't mean the other small party are not there. Yeah, small party are there, वहाँ हैं, but
जो बिग पार्टी है ना वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए उन इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, है ना। व्हेन टू और मोर देन टू पार्टीज फॉर्म, when no, not more than two, when two parties, basic big two parties, small parties are there, but two big party form governments. So इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं, टू पार्टी सिस्टम, और ऐसा अमेरिका और यूके के अंदर है। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी पार्टी सिस्टम्स। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have reasonable chance of coming to the power either on their own strength in the alliance with others, we call it the multi-party system. The two or more than two पार्टी से ज़्यादा, सॉरी, दो पार्टी से ज़्यादा जब पार्टी मिलके कोई गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और कई बार देखो, देयर इज टू थिंग्स, वन इज द कोलिशन। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स जीतने के बाद मिलके सरकार बनाना, मतलब टू फॉर्म ए गवर्नमेंट वी नीड 10 सीट्स एंड पार्टी ए वोन ओनली 8 सीट्स। तो मैंने दो पार्टी की दो लोगों को और मिला लिया ताकि 10 सीट हो जाए मेरे पास, एंड देन वी फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द अलायंस? अलायंस क्या होता है? क्या होता है, when several parties in multi-party system join hand for the purpose of contesting elections and winning power। ये मतलब जीतने के बाद नहीं, जीतने से पहले ही वो कुछ एक ग्रुप बनाते हैं कि हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, एंड दिस काइंड ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड द अलायंस। सो द टू अलायंस exist in modern world: NDA, the National Democratic Alliance in India, and UP, the United Progressive Alliance। ये इंडिया के अंदर ये दो अलायंस हैं। द पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। सो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिकली वी स्टडीड अबाउट द वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, coalition government, alliance, and two famous alliances, NDA, UPA। अच्छा, ये सब तो हमने पढ़ लिया। फिर एक then the question comes into our mind that what party system is good for a country, one party system, two party system or the multi party system। तो ये पता लगाना, it is really difficult task the which party system is good for any country। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर्स ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड द रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस। मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ की पॉलिटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ का इलेक्शन सिस्टम, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। सो टुडे विल स्टडी about the political parties, the functions of the political parties, and the party system, one party system, two party system, and the multi party systems। I hope you understand it, so thank you very much, thank you very much।